Underwriting of shares and debentures. Now, what exactly is underwriting of shares and debentures? If you can just explain in few words, अगर आप बहुत कम शब्दों में बता सको कि what is underwriting of shares and debentures through the chat box, I will be able to listen to that or read it very clearly. क्या है? Yeah, friends, underwriting यानी क्या? Please type in the chat box. Whatever you remember, whatever you have read, whatever you have understood. What is underwriting? Contract between company and underwriters. Very good, Shruti. Something more to add? किसी को कुछ और कुछ बोलना है इसमें? What is underwriting? Come on, let us not waste the time. Yes, a company which cannot able to sell the shares appoints an underwriter to sell the shares. So, perfect, very good. It is not sell all your shares, Mohanlal. Just I will like to correct that there is something called as minimum amount to be collected. Okay, that is generally 25% of the face value. तो अगर हम लोगों को उतना पैसा कलेक्ट करना है तो हमको शेयर्स उतना नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. If we are unable to get minimum subscription, especially in a joint stock company, then we cannot get commencement of business certificate. तो इसके लिए मिनिमम सब्सक्रिप्शन चाहिए. अगर एक कंपनी जिसका बहुत नाम है मार्केट में वो अगर हमारे सामने रहता है तो नेचुरली लोग खरीदते हैं शेयर्स. बट एक नया कंपनी का शेयर्स कौन खरीदेगा, गारंटी नहीं है. तो हम लोग ऐसे टाइम पर एक स्पेशल लोगों को एडमिट करते हैं इन आवर कॉन्ट्रैक्ट. दे आर कॉल्ड एज अंडरराइटर्स. So as you see on the screen, underwriting of shares and debentures is a contract between company and a second party, that is underwriters. They promise. What do underwriters do? They promise to sell all the shares of the company to the public. If any shares or debentures will be unsold, they will buy all these shares or debentures. दो काम करेंगे. उनका खुद का इतना बड़ा नेटवर्क रहता है, उनका खुद का मार्केट में इतना दबदबा रहता है कि वो लोग अगर बोलते हैं कि ये कंपनी का शेयर्स खरीदो तो उनका फॉलोअर्स झट से खरीद लेते हैं. लेकिन अगर नहीं खरीदा एंड दे हैव एंटर्ड इनटू एन अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट तो दे विल डायरेक्टली परचेज इट. इसके बदले में अंडरराइटर्स को क्या मिलता है? तो अंडरराइटर्स गेट अंडरराइटिंग कमीशन. एंड ये जो कमीशन है इसके बारे में भी कंपनीज एक्ट ने रेस्ट्रिक्शन रखा है दैट इट शुड नॉट एक्सीड 5% in case of shares and 2.5% in case of debentures. My dear friends, if you remember, before we go to the calculation part, there are some very important terms. I'm just going to share. PPT में नहीं है, but I'm going to share it with you. There are different types of words which you will see in this particular chapter. Of course, सब चीज आने वाला है, लेकिन हम लोग पहला डिस्कशन कर ले. कंपनी जब शेयर्स इशू करता है, when the shares are issued, at such times हम लोग को उसके बदले में जो एप्लीकेशंस मिलता है इसमें 4 इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप सब लोगों को मालूम होना ही चाहिए. पहला वाला वर्ड है marked applications. If you remember what is a marked application, please type in the chat box. Marked application. थोड़े कम शब्दों में लिखोगे तो भी चलेगा.
what is marked application? Yes, very good, Ashwini. It is application form stamp name of the underwriter. Yes, very good. Unite blocks. It says applications received by company with seal or stamp. Anjali also says perfectly. Bearing the stamp on application. किसका स्टैम्प होता है? This is the stamp of the underwriter. तो पहले के ये फिजिकल इसमें बहुत ज्यादा यूज होता था. अभी आजकल ऑनलाइन भी सब कुछ चलता है. अभी आपके सामने जो स्क्रीन है, ये मैं सिखा रहा हूँ या ये हेरम से रिलेटेड है, ये बताना मेरे लिए कोई मुश्किल का काम नहीं है. लेफ्ट हैंड साइड टॉप में देखोगे तो मेरा लोगो है, राइट हैंड साइड बॉटम देखोगे क्लास का नाम है, मतलब ये लेक्चर मैं ले रहा हूँ, ये मेरे को बताने का. दिस इज स्टैम्प्ड पेपर. तो वैसे आज की तारीख में बहुत सारा वर्चुअल स्टैंपिंग होता है. ठीक है, पहले के जमाने में फिजिकल स्टैंपिंग होता था. एप्लीकेशंस के कॉर्नर में जो अंडर राइटर्स रहते थे वो सब अपना स्टैंप मार के शेयर होल्डर्स या जो भी इंटरेस्टेड लोग रहेंगे उन लोगों को दे दिया करते थे. तो दूसरा आएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन. बेसिकली कंपनी को पैसा मिलने से मतलब है, अंडर राइटर के थ्रू आए या ना आए उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो डायरेक्टली जो हम लोगों को मिलने वाला शेयर्स का एप्लीकेशन है, दैट इज कॉल्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन. अब अंडर राइटिंग में कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं. जैसे आपको याद रहेगा तो एक होता है फुल अंडरटेकिंग, फुल अंडर राइटिंग, अंडरटेकिंग नहीं अंडर राइटिंग. What is full underwriting? What do you understand by the term full underwriting? Full underwriting क्या होता है दोस्तों? Everybody can try, write few words and participate. कंप्लीट अंडरराइटिंग मतलब कंपनी को अगर 1,00,000 शेयर्स बेचना है और पूरा का पूरा 1,00,000 शेयर्स हमने अंडर राइटर्स 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग लोगों को दिया, तो भी अगर हमने 1,00,000 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट बाहर दे दिया तो इट विल बी कॉल्ड एज फुल अंडर राइटिंग. दूसरा होता है पार्शियल अंडर राइटिंग. पार्शियल अंडर राइटिंग में क्या होता है कि 1,00,000 शेयर्स हम लोग इशू कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्टर्स खुद बोलते हैं कि 20,000 हम लोग हमारे रिश्तेदार दोस्त लोगों को बेचने में काबिल है, तो हम लोग जो है 20,000 हम लोग देख लेंगे, तुम लोग उसका टेंशन मत लो, 80,000 शेयर्स बेच के दो हमको. तो अगर सिर्फ 1,00,000 में से 80,000 शेयर्स का ही अगर हमने अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट में गए तो इट विल बी कॉल्ड एज पार्शियल अंडर राइटिंग. कभी कभी याद रख लेना, तुम लोगों ने ये एसपी में सीखा होगा कि जो स्टार्टिंग के शेयर्स रहते हैं, द ओरिजिनल शेयर्स जो लोग खरीदते हैं, दे आर जनरली परचेज्ड बाय promoters or they are given to the promoters as a part of preliminary expenses or whatever. So basically they become a shareholder of the company and they may even go on to become directors of the company. तो अगर डायरेक्टर्स को लगता है कि ये जो हमारे अंडर राइटर्स हमारे स्टार्टिंग के मुश्किल के दिनों में हमको मदद करने को आ रहे हैं, अगर ऐसा डायरेक्टर्स को लगता है तो डायरेक्टर्स अंडर राइटर्स को बोल सकते हैं. समझो 3 अंडर राइटर है, ए, बी एंड सी. तो मेरे दोस्तों ए, बी एंड सी में बोले तेरे को कम से कम 10-10 हजार शेयर्स तुमको ही खरीदना है, बाहर बेचने का नहीं. कंपनी का रिक्वायरमेंट 1,00,000 शेयर्स बेचना है, 20,000 डायरेक्टर लेने वाले हैं और तीनों अंडर राइटर को बोला 10-10 हजार तुमको लेना है. तो मेरे दोस्तों ये जो 10,000 शेयर्स का लायबिलिटी बनेगा ये खुद अंडर राइटर्स का ही बनेगा और ऐसे अंडर राइटिंग को बोलते हैं फर्म अंडर राइटिंग. तो
तो मैंने ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को एक अलग सप्लीमेंट पे लिख के दिया था। है क्या वो पेपर आपके पास? यस, नो, डोंट नो? 2 जन का यस आ रहा है, बाकी लोगों का क्या? जरा कोई एक जन ने इनिशिएटिव लेके ग्रुप में वो पेपर जरा फोटो निकाल के डाल दो, सो दैट एवरीबॉडी इज बेनिफिटेड। सो ये थियोरेटिकल पार्ट था एंड वी गो टू द कैलकुलेशन पार्ट। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन एग्जामिनेशन में भी ये अपने को काम में आएगा। देयर आर 3 वर्किंग नोट्स दैट हैज टू बी प्रिपेयर्ड। पहला, कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन। अब व्हाट इज कैलकुलेशन ऑफ अनमार्क्ड एप्लीकेशन? हम लोगों को टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड दिया रहेगा, मार्क्ड एप्लीकेशंस दिया रहेगा, वो लेस करके जो बचता है दैट इज कॉल्ड एज अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ये रफ में काम करते थे अपन। आई होप यू ऑल रिमेंबर द सेम। दिस वाज द मोर इम्पोर्टेंट वन, कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। कैसे नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं हम लोग, उसके बारे में पूरा वर्किंग नोट मैंने रखा हुआ है आपके सामने, मैं बताऊंगा। और ये ही सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन था मेरे दोस्तों। ये चैप्टर का थियरी बहुत इजी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कैलकुलेशंस आता है। वैसे तो बहुत इजी है, चैप्टर में 2 ही पार्ट था, मैं आपको ब्रॉडली डिस्कस करते वक्त लास्ट में मैंने कंक्लूड करके बताया था, वापिस आज बताऊंगा। And we have to make calculation of amount receivable or amount payable to or from the underwriters. The most important calculation is net liability. How did we calculate net liability? तो उसका सबसे पहला अनमार्क्ड एप्लीकेशन का हम लोग पहला कैलकुलेशन देखते हैं। पहला, टोटल एप्लीकेशन जो मिला उसमें से मार्क्ड माइनस करो, जो बच जाएगा वो होगा आपका unmarked applications. Please let me know if you know this particular calculation. Please type in your chat box no, KNOW. जिनको नहीं मालूम डोंट नो लिखना। करीब 40 जन लेक्चर बैठे हैं, रेस्पॉन्स देने वाले 8-10 जन ही हैं। सब लोग ने पार्टिसिपेट करो। आता है कि नहीं आता है उतना तो बोल ही सकते हैं हम लोग, नहीं आता रहेगा तो मैं कुछ एग्जांपल और बताता हूं जो अपन देख सकते हैं। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल वर्किंग नोट व्हिच यू यूज्ड टू प्रिपेयर। बहुत बार लास्ट में तो अपन ने लिखना भी बंद कर दिया, ओरल कैलकुलेशन करते थे। अब आता था कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी। दिस वाज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करते वक्त एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों को हमेशा हर क्वेश्चन में देखना है, दैट इज द बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग गिवन टू अंडरराइटर्स और नॉट गिवन टू अंडरराइटर्स। ये कंसेप्ट फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट गिवन नॉट गिवन क्या था, जिन लोगों को याद है टाइप मी, जिनको याद है टाइप मी। क्या था ये झंझट हम लोग बात करने वाले हैं। बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इज गिवन, बेनिफिट ऑफ अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन। बस यही तो आपका चैप्टर था। जिनको याद है मी टाइप करो। किसी को भी याद नहीं है? Oh my God. चलो, सो नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है। ग्रॉस लायबिलिटी यानी वो अमाउंट, अभी इधर मेरे एग्जांपल में XYZ आर अंडरराइटर्स। ग्रॉस लायबिलिटी वो नंबर ऑफ शेयर्स है जिसका कॉन्ट्रैक्ट X, Y और Z ने लिया है। मैंने आप लोगों को आज एग्जांपल लिया 1 लाख शेयर्स, तो 1 लाख शेयर्स में 20,000 डायरेक्टर्स बेचने वाले, छोड़ दो 10-10 हजार हम लोगों ने फर्म अंडर राइटिंग का बात किया था, और बचा 50,000। तो 50,000 को अगर हम लोग 20-20-10 ऐसा देते हैं 20-20-10, तो फ्रेंड्स मार्क्ड एप्लीकेशन लेस होगा, अनमार्क्ड एप्लीकेशन लेस होगा,
अब इधर बोलते हैं लेस फर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल एज गिवन इन द क्वेश्चन। तो मैंने एग्जाम्पल में 10 ऐसा बोला था। अगर आप वही 10 लिखते हो तो दिस विल बी कॉल्ड एज द बेनिफिट ऑफ अंडर राइटिंग इज गिवन टू द अंडर राइटर्स व्हेन firm underwriting is distributed as per the amounts, as per the shares given in the question. It is called as transferring the benefit of firm underwriting to the underwriters. कुछ याद आया क्या मेरे को बताओ मेरे दोस्तों? बस यही तो चैप्टर में सीखने लायक था। फिर आपको मालूम है नेगेटिव आंसर आया तो सरप्लस आंसर आएगा, मतलब जो भी रहेगा आपको नेगेटिव आंसर, तो इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर्स इन द ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो एंड देन फर्म अंडरराइटिंग जो था वो ऐड करो तो आपको मिल जाएगा नेट लायबिलिटी। मतलब अगर समझो एक्स का हम लोग बांधते चलते 20,000 20,000 10,000 तो 20 तो रेशियो 2:1 हो जाएगा। समझो एक्स ने सब मिलाकर 35,000 शेयर्स बेच के दिया, 15,000 उसका सरप्लस आया, वो 15,000 का बेनिफिट वाई और जेड को जाएगा। बहुत मेहनत एक्स ने कर लिया, लेकिन फिर भी एक्स को 10,000 शेयर्स जो उसका कमिटमेंट था वो खरीदना ही पड़ेगा, इसलिए नेट लायबिलिटी 10,000 शेयर्स का आएगा। और ये पूरा आंसर जो है याद रखना शेयर्स में होता है, रुपीस यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते। तो व्हाट डू यू मीन बाय फर्म बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग नॉट गिवन टू अंडरराइटर्स? So if benefit of firm underwriting is not given to underwriters, table will be same except one small change, and that change is firm underwriting is written off, is distributed in the ratio of gross liability। मतलब वही 30,000 10,000 10,000 10,000 वही 30,000 अब बांटते वक्त you will distribute in the ratio of 2:1। ये वर्ड्स याद रखना, बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन। क्या था? बेनिफिट गिवन, बेनिफिट नॉट गिवन। तो इफ बेनिफिट इज नॉट गिवन देन इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। क्वेश्चन में अगर कुछ भी झंझट नहीं दिया है तो हम लोग हमेशा क्या मानेंगे? किसी को याद है क्या बेनिफिट गिवन की बेनिफिट नॉट गिवन? Yes, very good, Sumita. We will assume that benefit is given and firm underwriting is distributed as per actuals. अगर फॉर्म अंडरराइटिंग आया तो, फॉर्म अंडरराइटिंग आया ही नहीं तो फिर ये बेनिफिट वाला शब्द भी आएगा नहीं, आपको सिर्फ मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन रहेंगे। हाउ डू यू कैलकुलेट अमाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल? तो हमको रिसीवेबल फॉर अंडरराइटर्स कंपनी का विरुद्ध है। So receivable for underwriters is commission at the given rates and payable is net liability shares multiplied by जो भी रहेगा एप्लीकेशन और अलॉटमेंट उसका जो पैसा आएगा। so therefore जो भी रहेगा या तो रिसीवेबल आएगा या तो पेएबल। आपको देखना है एजेंट के लिए जो भी रिसीवेबल रहेगा कंपनी ने देने का पैसा है और उसके लिए जो पेएबल रहेगा वो कंपनी के लिए मिलने का पैसा है। अगर हम लोग जर्नल एंट्रीज की बात करें, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सिर्फ एक कैलकुलेशन करने को आएगा, कुछ क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज भी पूछते हैं। तो जर्नल एंट्रीज में अगर आपको बोला रहेगा एप्लीकेशन अलॉटमेंट अलग अलग तो ठीक है, नहीं तो मिक्स होके भी आ सकता है। अलग अलग दिया है तो एप्लीकेशन के वक्त एज यूजुअल वेरी सिंपल कॉमन जर्नल एंट्री विल बी पास्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। वही ट्रांसफर करते वक्त हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एकदम बेसिक 12th स्टैंडर्ड में सिखाया हुआ जर्नल एंट्री। अब अलॉटमेंट के वक्त याद रखना जैसे बाहर वाले लोग थे वैसा अंडर राइटर्स भी थे, तो अंडर राइटर्स के लिए भी यहाँ पर अकाउंट डेबिट होगा, इसीलिए एंट्री आएगा बाहर वालों के लिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट
अंडरराइटर से जो मिलने का है, अंडरराइटर बिकम्स अवर डेटर, कंपनी को उससे अभी पैसा मिलने का है, सो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और जब अलॉटमेंट का पैसा मिल जाएगा तो बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। ये बाहर वाले लोग का पैसा मिला, ये चारों एंट्री मिलकर कंबाइन भी हो सकता है, लास्ट में अपन देखेंगे। अंडरराइटर्स को अपने को अंडरराइटिंग कमीशन पे करना है, इसीलिए हमारा खर्चा हो जाएगा, तो एंट्री आएगा अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू अंडरराइटर्स अकाउंट। फाइनल सेटलमेंट में या तो पैसा मिला या तो पैसा दिया, तो यहाँ पर पेएबल रिसीवेबल याद रखना अंडरराइटर का व्यू पॉइंट थर्ड वर्किंग मोड वाला है। तो अगर वो पेएबल बोलता है और पैसा मिला हमको तो हम बोलेंगे बैंक टू अंडरराइटर्स, और अगर हमको उनको देना है तो बोलेंगे अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। जो मैं 1 2 3 4 पहले बोला था उसको अपन कंबाइन कर सकते हैं। अगर अपन ने कंबाइन किया तो वो टाइम पर जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर इशू एट प्रीमियम रहा तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। सो दिस वाज इन शॉर्ट योर चैप्टर that was underwriting of shares and debentures, a very small